ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರ ಜನರೇ, ಈ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಕರ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಆತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಭೂಪರಲೋಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ಯೆಹೋವನೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಕರ್ತನೇ, ಈ ಆರಾಧನೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀನೇ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೋ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕರ್ತನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ನಾವು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 103ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 103 1ರಿಂದ 13ನೇ ವಚನವರೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. We shall read Psalm 103 verses 1 to 13 responsively. हम भजन संहिता 103 1 से लेकर 13वां वचन तक उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में पढ़ेंगे. मैं पहला वचन पढ़ूंगा, आप मेरे साथ दूसरा वचन पढ़ें. ऐसे हम बारी बारी पढ़ते रहेंगे. है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे. है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना बोलना. वही तो तेरा सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है. वही तो तेरा प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है. वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है. यहोवा सब पिसे हुए के लिए धर्म और न्याय का काम करता है. उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए. यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है. वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा. उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया. जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवयों के ऊपर प्रबल है. उदय चल अस्त चल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है. 13वां वचन हम साथ पढ़ेंगे. जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवयों पर दया करता है. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों को आशीषित करे, ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿಯಲಾರದೆ ನಿನ್ನ
ರುಚಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗತಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾಶನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ, ನಿನ್ನ ದಯೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಜೀವಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಣುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ದಿನ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ತನಕ ನಡೆಸಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡೆಸು. ತಂದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ಸಂಕಟ, ವೇದನೆಗಳು, ಚಿಂತೆ, ಭಾರಗಳು, ವಿಧ ವಿಧವಾದಂಥ ಬಂಧನಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ, ರೋಗಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ದೂರಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ದೇವದೂತರಿಗೆ ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅವರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಡೆಸು. ತಂದೆ, ಇವರು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ಕರ್ತನೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಜರುಗುತ್ತಾ ಇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ರೋಗಗಳಿವೆ, ಯುದ್ಧಗಳಿವೆ, ನಿಸರ್ಗದ ಪ್ರಕೋಪವಿದೆ. ಕರ್ತನೆ, ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುವಂಥ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀನೇ ಕಾಪಾಡು, ನೀನೇ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ಕರ್ತನೆ, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸುತ್ತಾ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನೀನೇ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ನಡೆಸು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ, ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರು, ಸಭಾ ಪಾಲಕರು, DS ಗಳು, ಬಿಷಪ್ಸ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಕರ್ತನೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಪಡಿಸುತ್ತಾ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಸಾಬ್ರು, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು. ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ತಂದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸ್ತು ತಲುಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೃತ್ಯುಂಜನಾಗಿರುವ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪ್ರಶಂಸೆಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಶ್ರಮಿಸಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಶ್ರಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೋಶುವನ ಪುಸ್ತಕ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 14ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. ಯೋಶುವನ ಪುಸ್ತಕ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 14ನೇ ವಚನ.
हम पुराने नियम का भाग पढ़ेंगे। योशुआ का किताब 24वां अध्याय 1 से लेकर 14 वचन तक। योशुआ का ग्रंथ 24वां अध्याय 1 से लेकर 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम नए नियम में प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय 14 से 22 वचन तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय 14 से 22 वचन तक पढ़ेंगे। विल रीड फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट बुक ऑफ जोशुआ chapter 24 verses 1 to 14, and then we'll be reading from the New Testament Revelation chapter 3 verses 14 to 22. Revelation chapter 3 verses 14 to 22. ಮೊದಲು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ। फिर योशू ने इज़राइल के सब गोत्रों को शेकेम में इकट्ठा किया और इज़राइल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब योशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरा आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवता की उपासना करते थे, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष इब्राहिम को महानद के उस पार से ले आकर कानान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। फिर मैंने इसहाक को याकूब और ईसाऊ दिया, और एसाऊ को मैंने सेईर नाम पहाड़ी देश दिया कि वह उसका अधिकारी हो, परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। फिर मैंने मूसा और हारून को बेचकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किया उस देश को मारा, और उसके बाद तुमको निकाल लाया। और मैं तुम्हारे पुरखों को मिस्र में से निकाल लाया, और तुम समुद्र के पास पहुँचे, और मिस्रों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारे पीछा किया। और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी, तब उसने तुम्हारी और मिस्रों के बीच में अंधियारा कर दिया, और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबो दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे। तब मैं तुमको उन अमोरियों के देश में ले आया जो यरदन के पास उस पार बसे थे, और वे तुमसे लड़े, और मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया, और तुम उन देशों के अधिकारी हो गए, और मैंने उनको तुम्हारे सामने से सत्यानाश कर डाला। फिर मोआब के राजा सिप्पोर का पुत्र बालक उठकर इज़राइल से लड़ा, और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुलवा भेजा, परंतु मैंने बिलाम की सुनने के लिए नहीं की, वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के पास आए, और जब यरीहो के लोग और अमोरी, परिजी, कनानी, हिती, गिरगाशी, हिवी और यबूसी तुमसे लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया, और मैंने तुम्हारे आगे बोरों को भेजा, और उन्होंने अमोरिया के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, यह तुम्हारे तलवार व धनुष का काम नहीं हुआ। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने
परिश्रम ना किया था, और ऐसा नगर भी दिया जिन्हें तुमने न बसाया था, और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जलपाई के बगीचे के फल तुम खाते हो, उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसीलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा कराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखों महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। पढ़े हुए इन वचनों को परमेश्वर आशीषित करें। दूसरा भाग, प्रकटीकरण, प्रकाशित वाक्य, उसका 3 अध्याय 14 से 22 वचन तक। द न्यू टेस्टमेंट रीडिंग is from Book of Revelation, chapter 3, verses 14 to 22. To the angel of this church in Laodicea write, the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God, says this: I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish that you were cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Because you say, I am rich and have become wealthy and have need of nothing, and you do not know that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. I advise you to buy from me gold refined by fire, so that you may become rich, and white garments, so that you may clothe yourself, and that the shame of your nakedness will not be revealed, and I salve to anoint your eyes, so that you may see. Those whom I love, I reprove and discipline. Therefore, be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and will dine with him, and he with me. He who overcomes, I will grant to him to sit down with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the church. May the good God add his blessings upon the reading of this portion. Amen. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಾಗ. ಈ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಅಥವಾ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಗ್ದಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೆಹೋಶುವನ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವರು ಕಟ್ಟಲಾರ್ದಂಥ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ಅವರು ಬೆಳೆಸಲಾರದಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿದ. ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ, ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ, ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ जరుగుता है। हम ये देखते हैं कि जो पढ़े हुए बाग में योशू की किताब में योशू ने इस तरह लिखा है या इस तरह कहता है कि जो परमेश्वर ने वादा किया मिस्र देश से इजरायलियों को निकालकर जो भूमि परमेश्वर देना चाहता था, उस वादे के अनुसार परमेश्वर ने सब कुछ किया। जो शहर ये लोगों ने नहीं बसाया था या बनाया था, उन शहरों को परमेश्वर ने दिया। जो खेत या जो उपज ये लोगों ने नहीं उगवाया था, परमेश्वर ने उन्हें दिया और उनको सभी सहूलियत परमेश्वर ने प्रदान किया और इनके पास अब सब कुछ है। सब कुछ होते समय एक डर भी या एक स्थिति ऐसी भी है जो परमेश्वर नहीं चाहता है, वो कि परमेश्वर तृप्त होने के बाद परमेश्वर को भूलने की परिस्थिति। प्रियो परमेश्वर के लोगों, ये उचित समय है कि हम अपने मन फिरा लें, अपने मन को तैयार कर लें, क्योंकि ये समय ऐसा दिया गया है परमेश्वर ने हमें कि अपने आप को हम जांचे, उसके आशीषों को जांचे, हमारे जीवनों में उसके कार्यों को जांचे और उसके समक्षता में हम फिर एक बार नए सिरे से उपस्थित रहे। अक्सर ऐसा हो रहा है कि हम जब आशीष पाते हैं, जब परमेश्वर भरपूरी से हमें आशीषित करता है या हमें कोई तकलीफ नहीं होती है, तो हम परमेश्वर की दुहाई तो करते हैं, लेकिन समय के चलते हम परमेश्वर को छोड़ अपने बलबूते पर हम घमंड करने लगते हैं या अपने ताकत पर भरोसा करने लगते हैं। ऐसे ही स्थिति अब चल रही है। ये जो महामारी चल रहा है, ये हम इस तरह इसे देखें कि परमेश्वर की तरफ से एक आगाह करने वाली विषय है। परमेश्वर हम सारे मनुष्य को या मानव जाति को फिर एक बार चेतावनी दे रहा है, विशेषकर उन लोगों को जो परम प्रधान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जी रहे हैं, यानी कि हम लोगों ने मृत्यु का स्वाद इन दिनों में नहीं चखा। इस कोविड से हमारे लोग या परमेश्वर के जन बहुत ही कम मर गए रहेंगे, लेकिन जितने जिंदा हैं आज, हम जितने जीवित हैं, हम सारे लोगों के लिए परमेश्वर उसके तरफ आने के लिए एक मौका और प्रदान किया। उस परमेश्वर को धन्यवाद हो, उस परम प्रधान को धन्यवाद हो जो हमें मौका दिया। प्रियो, ये जैसे कि मैंने कहा कि ये उचित समय है कि हम अपने मन को तैयार कर ले या अपने आप को हम वापस परम प्रधान परमेश्वर के पास आए। आप कहेंगे कि हम तो परमेश्वर के पास ही हैं, हम रोज़ाना प्रार्थना करते हैं, रोज़ाना हम उसके वचनों का मनन करते हैं, रोज़ाना हम उसके लोगों की संगति में रहते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात जो हमें समझने की आवश्यकता है, ज़रूरी है, वो ये, क्या हम उस परम प्रधान परमेश्वर के साथ उसकी संगति में सही मायने में जी रहे हैं, सही मायने में उसके साथ संगति हमारी हो रही है? इसे जानना ज़रूरी है। प्रियो, ये लोग जो वहाँ से आए, मिस्र प्रदेश से, उस ज़माने के लोग, परमेश्वर ने दिए हुए उस आशीषित स्थान को जब ग्रहण किया लोगों ने, उस समय दिन बीतते गए, वे लोग वहाँ के जो लोग थे, स्थायी लोग, पहले
उनके साथ घुल मिल गए और उनके भगवानों को अपने भगवान समझने लगे। ये आज का एक बड़ा धोखा है। हम इस दुनिया में रह रहे हैं, इस वातावरण में रह रहे हैं और अपने आप को हम दूषित कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम किस तरह अपने आप को दूषित कर रहे हैं। प्रियो, ये समय है कि हम अपने आप को फिर एक बार परमेश्वर के पास हमारे मन को फिराएं और आए। देखिए, ये लोगों ने मिस्र प्रदेश में से जब वे बाहर आए, जो जो कार्य परमेश्वर ने उनके जीवन में किया, जो वचनों में लिखा है, यहोशुआ कहता है, यहोशुआ इस तरह कहता है कि उन सारे विषयों को याद करो जो परम प्रधान परमेश्वर ने किया है, जो प्रभु ने किया है। उन विषयों को याद करो। देखो, वो उनकी ताकत, उनकी सामर्थ तुम्हारे जीवन में दिया हुआ उन विषयों को याद करो। वो परमेश्वर तुम्हारे साथ 40 साल चला। वो परमेश्वर तुम्हारे हर एक जरूरतों को पूरा किया, तुम्हें अन्न दिया, तुम्हारा पहनाव या तुम्हारा थकान, उन सारे विषयों को उसने समाप्त किया या उन विषयों का निवारण किया। परमेश्वर तुम्हें युद्ध में जिताया। प्रिय, आपके जीवन में भी देखिए, परमेश्वर ने आपको आशीषित करते हुए आपको ले आया। आज तक वो तुम्हें चलाया। हर ऊंचे नीचे पथ पर, हर एक परेशानियों में, बीमारियों में, संकट में, वेदनाओं में वो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें चलाया और तुमने अनुभव किया है। तुम उसके बारे में बोल भी सकते हो कि मेरा प्रभु ऐसा ऐसा कार्य किया है। लेकिन समय चलते चलते उस प्रभु का प्रभुत्व तुमने खो दिया, हमने खो दिया। उसे याद करना है, उसकी सामर्थ्य जो हमारे जीवन में एक समय मजबूती से था, उस समय को याद करना है और उसके उपस्थिति को याद करना है। उसके वी हैव टू कंटेम्पलेट God's presence in our lives। उसके हर एक जो हमें प्रदान कर रहा है या जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है, उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले विषयों को हमें याद करना है। देखिए, हमारे बलबूते से, हमारे ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते। यदि आप इस समय का जो इस वातावरण को ध्यान दे, तो ये महामारी जो है, ये मनुष्य जाति को इतना निर्बल बना दिया है कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य ने अपनी बुद्धि बल से आज दूसरे ग्रह तक पहुंच गया। विज्ञान बहुत तरक्की किया है, यहां तक कि मनुष्य हूबहू दूसरा मनुष्य को उसका डीएनए अल्टर करके, उसका हर एक विषयों को अल्टर करके ऐसा बना सकता है जैसा वो चाहता है, वैसा रूप दे सकता है। अगर मान लीजिए महात्मा गांधी को या महात्मा गांधी का रूप वापस लाना है, तो वो आज मनुष्य कर सकता है विज्ञान के सहारे। डीएनए में, जीन्स में, सब में अल्टर करके वो कर सकता है, जैसे चाहे वैसे रूप दे सकते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आज हम बेबस हैं। अदृश्य उस वायरस को हम उसके ऊपर जय नहीं पा सकते हैं या उसे हरा नहीं सकते। एक बार
वो अपने जपेटे में ले लिया तो मनुष्य निर्बल हो जाता है। वो उसकी करुणा ही होता है कि वापस हम बाहर निकल कर आते हैं। विज्ञान को या मनुष्य की बुद्धि को आज परमेश्वर ने हिला दिया है। प्रियो, ये परमेश्वर को या ये परमेश्वर देने वाले हर एक आशीषों को अपने जीवन में याद करें। और ये समय ऐसा है कि उसके लिए कार्य करना है। वी हैव टू मेक अप आवर माइंड टू रिमेंबर ऑल हिज वर्क इन आवर लाइव्स। इट इज द टाइम टू वर्क फॉर हिम। ये उचित समय है उसके लिए कार्य करें। कार्य कैसे करेंगे? पहला, उसके वचनों में जो आज्ञा उसने या जो बातें उसने कही हैं उन बातों का अनुसरण करना। वी हैव टू ओबे, वी हैव टू फियर, वी हैव टू रेवर द लिविंग गॉड। परमेश्वर को उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसको सम्मान देना और उसकी आदर करना, यह हमें करना है। दूसरा, हमारे वश में या हम जिस अन्य देवताओं को पूजा करते हैं, अन्य देवता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जिसको परमेश्वर के अलावा जिस और विषय को प्राथमिकता देते हैं, महत्व देते हैं, उन सारे विषयों को हटा दे। गिव इंपॉर्टेंस टू द लिविंग गॉड अलोन। परमेश्वर को प्रथम स्थान दे। आज परमेश्वर ने उसका सामर्थ्य दिखाया है। यदि हम उसको स्थान नहीं देंगे तो परमेश्वर हमें स्थान नहीं देगा, हमें जीने की अवकाश भी नहीं देगा। तीसरा, हम उसकी कार्यों को बहुत ही सुंदर रीति से या बहुत ही एक अंग्रेजी में हम कहते कि विथ सिंसियरिटी, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನದಿಂದ ಆತನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಆತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು। देखिए, अगर हम परमेश्वर को या परमेश्वर कार्य को उसके वचन अनुसार नहीं अगर करते हैं तो हम परमेश्वर के लिए योग्य नहीं है। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में बहुत सारे कार्यों को किया है, उसके उपकार हमारे जीवन में बहुत बहुत है, हम उसके ऋणी हैं। इन बातों को याद करते हुए उसके कार्यों करना है। आज हमारे पास परमेश्वर ने विकल्प दिया है, चॉइस दिया है कि हम उसकी सेवा करें या दुनिया के भागदौड़ में रहें। योशुआ लोगों को कहता है कि परमेश्वर की सेवा करना उचित है, परमेश्वर की सेवा करना उचित है। देखिए, वचनों में भी आप ये देखते हैं, मत्ती 6:33 इस तरह है कि पहले परमेश्वर के राज्य और नीति की खोज करे, उसके बाद हर विषय परमेश्वर तुम्हें आप ही देगा। परमेश्वर की खोजी बने, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತವರಿಗೆ ದೇವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ। ಆತನನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯ। ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಭಾಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ।
ये जो भय का माहौल है, ये जो दूषित वातावरण है, इन दूषित वातावरण में, इस भय के माहौल में हमें बहुत मौका मिलता है कि हम परमेश्वर के कार्यों को करें। हम परमेश्वर के वचनों को लोगों को सामर्थ्य देने के लिए उसके वचन को कहें। इस दुनिया में हमारे बहुत सारे मित्र रहेंगे अन्य जाति के, उनको परमेश्वर की वाणी सुनाएं या वचन को उनको बताएं। उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं, कोई प्रार्थना के लिए रोकेगा नहीं। ऐसी भयंकर स्थिति में हमें परमेश्वर मौका दे रहा है उसके कार्य को करने के लिए, उसके कार्य करें। और ये वो समय है कि हम अपने आप को ಶುದ್ಧಿ ಕರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ ಇದು. We have to make up our mind by remembering Him, by serving Him, and by consecrating ourselves. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧೀಕರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಈ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ the people consider all that the Lord has done for them and declare their allegiance to Him alone. ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಮೊದಲನೇ ಮೆಟ್ಲು, the first step for consecrating is you have to consider, ನೀವು ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ, ಅದು ಮೊದಲನೇ ಮೆಟ್ಲು. पहला काम, शुद्धिकरण का पहला काम ये है कि आप परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हुए हर कार्यों को याद करते हुए उस परमेश्वर के प्रति आपकी वफादारी, आपकी विश्वास, ये होना ज़रूरी है. दूसरा, परमेश्वर के समक्षता में अपने आप को शुद्ध रखें, या हम हमारी हर बुराइयों को हमारे जीवनों से हटाते रहें, चाहे वो शारीरिक रीति से हो, मानसिक रीति से हो या आत्मिक रीति से हो. हम बहुत सारे चीज़ों को, दुनिया के बातों को हम अपनाते हुए जी रहे हैं. उन बातों को छोड़ दें, उन विषयों को हटा दें और वचन अनुसार जो परमेश्वर चाहता है, पवित्रता या नीति के रीति से हम रहें. उसके अनुग्रह ही, केवल उसका अनुग्रह ही प्राप्त करते रहें. तीसरा, हम परमेश्वर की, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हम परमेश्वर की समक्षता में रहते हुए उसने दिया हुआ हर एक विषयों को करें. हम परमेश्वर के कार्य को बिजनेस ना समझें, हम परमेश्वर के कार्यों को व्यापार ना समझें, बल्कि उसके कार्यों को उसके राज्य के विस्तार ये समझते हुए, या उसको हम खुशी महसूस कराएं ये समझते हुए हमें कार्यरत होना चाहिए. परमेश्वर को आदर, सम्मान और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए उसमें बसे हुए रहना चाहिए. तब हम शुद्धिकरण का या शुद्धिकरण के उस प्रक्रिया में मिल जाते हैं. तब परमेश्वर अपने कार्यों को हमारे जीवनों में करने लगता है. प्रियो, फिर एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये समय है कि अपने आप को हम वापस तैयार कर ले. लेट्स मेक अप आवर माइंड टू कम बैक टू हिम. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू कम बैक टू हिम. दिस इज अ चांस which we have got. Maybe in the days to come we may miss the chance
if we don't, or if we fail to go back to Him. He is the Lord, He is the God of Abraham, Isaac, the God of living. He is there. वो है, वो परम प्रधान आज हमारे जीवनों में उपस्थित होना चाहता है। जैसे प्रकटीकरण 3 अध्याय उसके 22 वचन में हम देखते हैं, उसके 21 वचन में देखते हैं, इस तरह लिखा है, मैं द्वार पर रुककर खटखटा रहा हूँ, यदि मेरी आवाज़ सुनकर कोई द्वार खोलता है तो मैं उसके भीतर आऊँगा या मैं उसके साथ भोजन करूँगा। या इस तरह भी कहता है परमेश्वर कि मैं उसे मेरे साथ मेरे सिंहासन पर उसे बिठाऊँगा। प्रियो, बहुत चाहता है प्रभु हमसे, बहुत चाहता है, हमें बहुत चाहता है। वो चाहत आज, वो चाहत ही है जो हमें जीवित रखा है। वो चाहत ही है जो आज हमें जीवन की श्वास लेने के लिए रखा हुआ है। आज हम कोई विषय में हम चूके नहीं हैं। आज हम चुस्त तंदुरुस्त हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से हम जीवित हैं। ऐसे ही हमें अगर रहना है, ऐसी आशीषों में बने हुए रहना है, तो प्रियो, ये समय इसका सदुपयोग करें। ಮೇಕಪ್ ಯ ಮೈಂಡ್, इसका ಸದುಪಯೋಗ ಕರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ। ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಬಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿ। ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ। ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ। ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರಾಧನೆ ಆದ ನಂತರ ದಯಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು। ದೇವರ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವಾದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ತರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕಾಣಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ। ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೈತ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳಾಗಲಿ, ಡೊನೇಷನ್ಗಳಾಗಲಿ ನೀವು ಕಳಿಸಬಹುದು। ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು। ಇದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಷರರ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಗೌಡರ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್, IFSC ಕೋಡ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬಹುದು। ಮತ್ತು ಕಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ನಂಬರ್, UTR ನಂಬರ್ ಅವೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೀಫನ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ರಿ। ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾರು ಹಣ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ರಿಸಿಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ प्रियरे, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि यदि किसी को ऑनलाइन दान देना है तो आप अपने हमारे चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में दिया हुआ उस अकाउंट नंबर और IFSC कोड को आप देखें। यदि इसमें आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप हमारे ट्रेजरर स्टीफन गौडर इनसे बात करें, इनसे संपर्क करें और वो आपको इस विषय में आगे बताएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर को दान देने से न रोकें, परमेश्वर के भंडार को बढ़ाते रहें, ताकि परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में दिन प्रतिदिन उतरते रहें। इस ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ। ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋಣ। ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ಕೆಲವು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. निन्ने दिन 11 तारीख 11 तारीख सैमसन सोलोमन इनका जन्मदिन था और ये 75 साल इन्होंने अपने जीवन का परमेश्वर के अनुग्रह से बिताए और उनके नए साल में प्रवेश कर चुके हैं कल. और आज 12 तारीख 12th टुडे आज जन्मदिन है विलियम एस गायकवाड़. 12th श्वेता सैमुअल गुंजड़ी. 12th टीना विजय हिरेकेरूर. 13th एलेक्स डेनिस सोन्स. 16th हेमा जॉर्ज सैमुअल. 16th रेखा स्टैनली माबेन. ये प्रिय लोगों का इस हफ्ते में जन्मदिन है. There's no wedding anniversaries, so we'll sing birthday song for these people. हम birthday song इस इन लोगों के लिए गाएंगे. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear all, happy birthday to you. May God bless you all. ನಾವು ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯವಾದವರಿಗೆ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಿಚರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಥ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಸುತಾರ ಆಂಟಿ ಅವರ ಮಗ ಲಾರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಕುರಿ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಲೋಬೋ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಅರ್ಥರ್ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ಗೋಸ್ಕರ, ಜೋಯಲ್ ಬೆನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. आइए हम प्रार्थना करें. परम प्रधान परमेश्वर, हम आपको फिर एक बार धन्यवाद करते हैं. हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं क्योंकि आपने हम सारे लोगों को जीवितों की संख्या में रखकर आपके अनुग्रह में आपने चलाया. इस समय हम धन्यवाद करते हैं उन प्रियजनों के लिए जो अपनी जन्मदिन सप्ताह मना रहे हैं और जिन्होंने पिछले सप्ताह में कल अपने जन्मदिन मनाया. सैमसन सोलोमन जो 75 साल अपने जीवन की पूर्ण करते हुए नए साल में प्रवेश कर चुके हैं. पिता, उनको आपने संभाल कर रखा, आशीषित किया. पिता, होने दे आने वाले समय में भी इन ये प्रिय व्यक्ति को, ये प्रिय आपके बेटे को आशीषित करें. उन्हें और परमेश्वर के इच्छानुसार चलने के लिए बल प्रदान करते रहें. उसी तरह प्रार्थना करते हैं पिता इन प्रियजनों के लिए जो इस सप्ताह में अपने जन्मदिन मना रहे हैं. विलियम गायकवाड़, श्वेता गुंजड़ी, टीना, एलेक्स डेनिस सोन्स, हेमा जॉर्ज सैमुअल, रेखा स्टैनली माबेन, इन प्रियजनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं. पिता, इन सभी को आशीषित करें और इनके जीवन के नए वर्ष में प्रवेश करते समय आपकी उपस्थिति, आपकी प्रसन्नता रखकर इनकी अगुवाई करें. पिता, इनकी हर एक बीमारियों से, कष्ट, दुख, संकट, वेदनाओं से बचाएं. इनके ऊपर आपकी सुरक्षा कवच रखें ताकि ये प्रियजन हमेशा परमेश्वर के करीब अपने जीवनों को व्यतीत करते हुए उसकी प्रसन्नता में रहें. उसी तरह प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनको आपकी स्पर्श की आवश्यकता है. पिता, हम प्रार्थना करते हैं रिचर्ड के लिए, प्रार्थना करते हैं सुतार आंटी, उनका बेटा लॉरेंस के लिए, कुरी आंटी के लिए, लोबो आंटी के लिए, अर्थर आंटी के लिए और भाई जॉन इमैनुअल के लिए और उस बच्चे के लिए जोएल बेन के लिए प्रार्थना करते हैं. पिता, इन लोगों को आपके घायलता का स्पर्श करें और संपूर्ण चंगाई इन्हें प्रदान करें ताकि ये प्रिय लोग चंगाई पाकर परमेश्वर की दुहाई दे सके और परमेश्वर के महिमा के लिए उसकी गवाही देने के लिए योग्य ठहर सके. पिता, फिर एक बार हम सारे लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं. उसी तरह प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के सभी लोगों के लिए. पिता, जो व्यक्ति इस समय इस आराधना में भाग ले रहे हैं, जो इस आराधना को देखकर सुन रहे हैं, पिता, इन सभी के ऊपर आपकी आशीष उतरने दें. उनके घरों में आपकी मुख्य उजाला प्रदान करें. पिता, जैसे आपके लोग आपके किए हुए कार्यों के प्रति, आपके दिए हुए हर एक आशीषों के प्रति छोटी सी दान आपके चरणों में अर्पण करने के लिए तैयार हैं. पिता, विनती करते हैं इनकी दानों को आप आशीषित करें, इसे बढ़ाएं, आपके राज्य के विस्तार के लिए उपयोग करें. और पिता, होने दे ये प्रियजन
और अधिक आसमानी आशीषों के पात्र बनकर परमेश्वर में संतुष्टि का जीवन बिता सके, ऐसे आशीष करें। हम सभी को पिता फिर एक बार आपके हाथों में समर्पित करते हैं, सुरक्षित रखें और आपकी लहू से हम सभी को आप ढाक दें, ताकि हम सारे लोग आप ही के इच्छा अनुसार हमारे जीवनों को व्यतीत करते हुए आप ही को संपूर्ण महिमा दे पाएँ। आने वाले समय में भी पिता हम आपकी आराधक बनकर हमेशा रह सके और आप ही को महिमा दे सके, ऐसी अनुग्रह हम पर करें। धन्यवाद करते हुए सारा मान महिमा गौरव आप ही को देते प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम में मांगते हैं, आमेन। ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಿತ್ಯ ಸಹವಾಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಆಮೇನ್। ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ। ನಾವು ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿದೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ನಾವು ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ। ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಆಮೇನ್।